नमस्कार, मैं हूँ शालिनी कपूर सिंगापुर से। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM विशेष मुलाकात। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से बातें करते हैं। तो आइए, आज के इस शो में हमारे खास मेहमान हैं वासुदेव पी चंदारमानी, जिनसे हम लोग बातें करेंगे। और ये विशेष सिंगापुर सिंधी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और काफ़ी समय से सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे ब्लड डोनेशन का हो या गरबा कप का हो या फिर कोई भी फेस्टिवल हो। सिंधी लोग जो मनाते हैं फेस्टिवल, उसमें बहुत ही अच्छा अहम योगदान करते हैं और सभी लोगों को जोड़ के रखने का इनका विशेष काम है। तो आइए, ऐसे विशेष वासुदेव जी से हम लोग बात करेंगे। आप सभी की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत है। Okay, do all religious programs, all the religious ceremonies that Hindus believe in, have found out that it is the oldest Sindhi association in the world. Having just returned from Sindhi Sammelan that was held in Spain. It's confirmed, and I'm very glad to tell you that in the year 2021 we will be celebrating 100 years of existence, and this program would be done, I think, in the best possible way to get all the top Sindhis of the world, all the Sindhis of the world together here to celebrate this occasion with us. That is the intention of 2021. I'm currently the president, and we celebrate here all the religious programs, that religious events of the year. And we also celebrate whatever festivals that are well known to be celebrated. But there are programs, of course, which we have created that were never in existence, like Tijri. Tijri is the Sindhi version of Garba Chot. Yeah. And Tijri was celebrated in a very nice way. We did it in August. And Krishna Janmashtami is the best program of the year, where we do it in a very big way in a theater, where we do all the drama in Hindi. Okay. This year we did on the life of Krishna and his son. What was the son's name? I'm sorry, it's not coming to my mind. I played the role of Shakuni Mama, and there were 35 over participants, 500 over crowd in a theater. We did it musical, dance, and drama program. So, like this, we celebrate all the major festivals, and this place that we are currently in is called Sindhu House. It was acquired in 1960, and this is our community house. As we have religious, we have a prayer hall upstairs, and we meet downstairs for social programs. We take care of our senior citizens too. We have monthly programs for senior citizens. We have yoga classes. We have educational classes. We have Hindi classes. We do whatever we can to make our community grow and to retain our culture and heritage. The president term is for 2 years. My term will end next year, April, unless the public likes me, and then I'll come. I can continue for another 2 years. Yeah, it's on voting system, but chances are there'll be no voting, so I should go on for another 2 years and celebrate the 100 years
of existence. You'll invite us also. Definitely, why not? It'll be a beautiful experience. It is one, I'm very proud to have found out that we are the oldest and in the world. So I was already thinking of calling all the presidents of all the Sindhi associations around the world to be my guests for this occasion. Even for that matter, the Nirankaris, even that one was Baba Vashdev, and he took my name, and then he was also a Sindhi. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए। आशा करता हूँ हमारे श्रोता मित्र सोच रहे होंगे कि इंग्लिश में बोला है तो कुछ बातें तो आप समझ रहे होंगे। ये विशेष रूप से वासी चंदानी जो है खास करके सिंधी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वर्तमान में है और आगे भी 2 साल कंटिन्यू करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने होप जताया है क्योंकि उनका काम अच्छा है। और 1920 में यहाँ पर सिंधी एसोसिएशन जो इस्टेब्लिश हुआ उसको पूरे 100 साल होने वाले हैं और उनका कहना है कि ये जो एसोसिएशन है ये बहुत पुराना है पूरे विश्व में और इनका जो काम है, इनकी जो बातें हैं वो सुनकर ऐसा लगता है कि काफ़ी पुराने होने के नाते उसका एक सेलिब्रेशन 100 साल वाला जो है उसके लिए काफ़ी उत्साहित है और उसके लिए बहुत सारी जो प्लानिंग्स है वो कर रहे हैं अभी से ही। तो मुझे लगता है कि जैसे हर एसोसिएशन में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होता है, तो यहाँ पर ऊपर जो है इनका जो सिंधी हाउस है उसमें ऊपर प्रार्थना सभा है, सभी लोग सवेरे शाम वहाँ पर प्रार्थना करते हैं और फेस्टिवल में भी अच्छे जो प्रोग्राम्स होते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी का हो या जो भी अलग अलग फेस्टिवल होते हैं वो उसको बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। हाल ही में जो कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हुआ उसमें कृष्ण बहुत सुंदर बने थे और उसके बाद शकुनी मामा का रोल खुद ये वासी जी ने निभाया था, वो भी एक खूबसूरत बात उन्होंने अपने शब्दों में बताया। और इसके साथ ब्लड डोनेशन कैंप्स या फिर सीनियर सिटीजन जो होते हैं जो इस एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए काफ़ी जो है ना सीनियर सिटीजन बना, उनका केयर करना, उनका हेल्थ के बारे में सोचना, उनको अच्छी तरह से गाइडलाइन करना प्रॉपरली और उनको अपने परिवार के साथ बनाए रखना, ये सब काम होता है। तो सोशल एक्टिविटीज़ के रूप में ये काम भी इस एसोसिएशन के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूँगा कि आपने एसोसिएशन के बारे में और अपना नाम बताया, मैं चाहूँगा कि आप पर्सनली अपने लाइफ के बारे में बताइए, आपके फैमिली के बारे में बताइए, आपका जन्म कहाँ, पढ़ाई कहाँ हुआ, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। Well, I was born in Singapore, born, bred, educated in Singapore. I am a chartered accountant, but I never pursued my occupation. I jumped from jobs and then finally I have become a businessman specializing in uniform business. I'm proud to say that Silk Air uniform is my fabric, my stitching, and that is 1 in a million chance. I've got that contract, and similarly I've got contracts from different hospitals, schools, and that's my life. I have 2 daughters, aged 18 and 19. Both are fighting to become better doctors. One is in the first year, one is in the second year of the university, and both are in medicine. And my wife passed on in the year 2016, so I'm their dad and mom altogether. Okay, I have an extended family, a very big family. We are all very close-knit, and I'm proud to say that we have not lost our heritage. We are one Sindhi family who speaks Sindhi very well. Among all the Sindhis that exist, our family, whenever we speak to each other, we automatically speak in Sindhi because that's how we were brought up. Keeping mother tongue alive is the most important thing, and keeping the Sindhi traits, Sindhi knowledge, Sindhi, not forgetting that you are a Sindhi is I think a very important thing, which many Sindhis are not really paying attention to. The language, the writing, but
we are trying our best to get it through to as many people as we can to keep it alive. जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आप अपने बारे में बताया कि आप यहीं पर जन्म लिए और यहीं पर आपने पढ़ाई किया और एज ए अकाउंटेंट आपने स्टडी किया, लेकिन कभी आप उस तरह का जो काम है वो नहीं किया। आप सीधे तरह से जंप किया बिजनेस में और सिल्क का आपका यूनिफॉर्म का बिजनेस है। और इसके साथ में आपके फैमिली में 2 बच्चे हैं आपको, और वो दोनों बच्चे जो है डॉक्टरी कर रहे हैं। एक फर्स्ट ईयर में, एक सेकेंड ईयर में है। और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं बच्चों को कि वो अच्छा एक्सेल करे डॉक्टर में। और आपने अपनी वाइफ के बारे में बताया, वो कुछ 2016 में आपको छोड़ के चले गए। और इसके साथ में आपने ये भी बताया कि आपके ही परिवार में ऐसे लोग हैं जो सिंधी हमेशा जिससे भी मिलते हैं या अपने लोगों से मिलते हैं तो सिंधी में बात करते हैं। तो सिंधी लैंग्वेज को बरकरार रखना उनकी एक अपनी खूबसूरती है, तो वो आपको अच्छा लगता है और आप इन सभी चीज़ों को जो है लोगों से जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगा कि जाते जाते जैसे एक कोई गीत, एक संगीत के साथ आपका जुड़ाव कैसा है, क्योंकि काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी आप करते हैं, खुद ड्रामा भी करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक आध गीत जो आपके दिल के करीब हो उसके बारे में बताइए। ये गाना उमा भारती को जानते हैं, जो अभी बड़ी MP हो गई है। पहले एक छोटी लड़की थी, हमारे घर में आके रही, एक महीना रही। हाँ, पर ये वो सुनाती थी, जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस संग में, जिस रंग में, जिस ढंग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चाहे अवध में, चाहे लंका में, मिथिला में तुम रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। यदि गोकुल में या मथुरा में, द्वारिका में तुम रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ऋषिकेश में, हरिद्वार में या शुकताल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस गाँव में, जिस देश में, जिस भेष में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चलिए, बहुत ही खूबसूरत भजन आपने उमा भारती जो गाती थी उसके बारे में आपने बताया और कुछ लाइनें आपने भजन के सुनाया। आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को, जो लोग इस भजन को सुने होंगे, उन्हें बहुत खुशी हो रहा होगा और उनके चेहरे पे एक स्माइल भी आ रही होगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि एक लास्ट में मैं चाहूँगा कि एक मैसेज के तौर पर आपको पूरी दुनिया सुन रही है, उन सभी के लिए आप वासी चंद जी, आप कौन सा एक मैसेज कोट करना चाहेंगे वर्तमान समय को देखते हुए? Always be humble, always be directed towards a goal, a motive in life. Never have an ego in anything you do. Thank you.
बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया कि हमेशा निरंकारी बन के रहो और सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो और हमेशा अपने गोल, अपने विचार, अपने लक्ष्य को केंद्रित करते हुए आगे बढ़ते रहें। ऐसी शुभकामना, ऐसा मैसेज वासी चंद जी ने दिया है। तो हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी, ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का, नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो,